Hello, dear friends. You are welcome to UCIOS Education Platform. Today, we will continue from where we have left in our previous video. Now, we will discuss about the Reign of Terror, means Atank ka Raj. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after डॉक्टर गिलेटिन who invented it. इसका मतलब है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का गुण युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलेटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर पड़ा। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain Dijalite equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional Monsieur, Sir and Madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोयन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मतलब इस टाइम पे द रीगन ऑफ टेरर के टाइम पे सर और मैडम की जगह फ्रेंच मैन और वुमन को सिटोयन और सिटोयनी मतलब सिटीज़न और सिटोयनी का नाम दिया गया था। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested on the next day, sent to the guillotine. It means रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमाइल डेसमोलिन्स रॉट द फॉलोइंग इन 1793। आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस।
The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils. These 10 appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के कारण मतलब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो मिडिल क्लास था उस संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जो मिडिल क्लास थी उसके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो संपत्तिहीन थे जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी नॉन प्रॉपर्टाइड थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया मतलब उनके पास उनसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जो जैकोबिन थे उनके शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. मतलब सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।